Once, a young man faced a significant embarrassment on stage. He accidentally mixed up couple of key points and the audience noticed. He can feel the disappointed in the eyes of the audience. But rather than taking this as a defining moment for him, he actually thought of taking it as a learning lesson and started honing his craft. And slowly but surely, he is now become a celebrated figure in today's world. The speaker I'm talking about is none other than Jay Shetty. It's funny, right? Most of the great speakers that we know today have done some mistakes in their speaking careers. And that brings us to the theme of this season, that is public speaking experiences, from embarrassment to empowerment. Hello, everyone. This is Aditya Mehta, and you are listening to Personality Development Podcast. In this episode, we are going to hear a very similar journey from RJ Dileep Singh. He is the guy who has faced numerous challenges in his speaking journey. And of course, now he is a more celebrated figure and he has mentored many individuals who are now thriving into the speaking careers. So please allow me to welcome RJ Dileep Singh. But before we get started with this episode, let me give a huge shout out to New Image Consulting, our sponsors for this entire season. This organization is dedicated to help companies and individuals build their personal brands and live the life to the fullest. Now, with that being said, let us get started with the episode. You listen to this amazing intro music. Till the time, I'll get RJ Dileep in this episode. Hello everyone, welcome back to this episode. And as I've already mentioned, we have RJ Dileep Singh with us in this episode. थैंक यू सो मच आदि फॉर हैविंग मी हियर और मज़ा आ रहा है देख के कि बहुत अच्छा कर रहे हो और उम्मीद है कि और भी अच्छा करेंगे हम लोग Thank you so much, sir ji. सब आप ही की देन है. I mean, let me tell you this first. Dileep sir ji is my mentor as well for voice modulation and many more things. Actually, I'm becoming RJ. I'm on the journey to become an RJ, and he's mentoring me in that. So yeah, that's RJ Dileep sir for you. And sir ji, पहले तो क्या हाल चाल सर? बहुत बढ़िया और पोहा खिला के एकदम दिल खुश कर दिया चाय और पोहा जो हमें सुबह सुबह चाहिए होता है शाम को मिल गया आज नहीं सर, हम हमारे जो भी गेस्ट रहते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हम गेस्ट नहीं बोलते, बट वी से देम एज एक्सपर्ट्स बिकॉज दे एड न्यूमरस वैल्यूज इन द लाइफ्स ऑफ द ऑडियंस एंड पर्सनली मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं भी उन्हीं से सीखता हूँ, जो सीखता हूँ वो हर आदमी किसी न किसी से सीखता है मैं भी किसी न किसी से सीखता हूँ और आज बहुत सारी चीज़ें पॉडकास्ट में मैं तुमसे सीखूंगा थैंक यू सर, दैट्स अ बिग थिंग एंड दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू. सो सर जी, मतलब मैंने जो आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, मैं बोलूँगा कि वो तो सिर्फ एक झलक थी आप जो हो उसके. तो आई वुड रियली होप दैट आप एक अपना डिटेल्ड इंट्रोडक्शन और हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप क्या चीज़ है. देखो मैं चीज़ तो नहीं हूँ मैं नाचीज़ हूँ और कहते हैं कि जब आप एक सफ़र की शुरुआत करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं आप करना कुछ चाहते हो और यूनिवर्स आपको कहीं और ले जाना चाहता है Right. और कभी कभी फैमिली और इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते. सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं बचपन से चाहता तो था कि मैं आरजे बनूं, एक्टर बनूं और रेडियो सुनता था, लेकिन फैमिली मेरी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन वो डॉक्टर वाले गुण मेरे कोई नहीं थे मेरे अंदर तो हैंड राइटिंग सर, वैसे हैंड राइटिंग हाँ है, एक ही गुण है जो हैंड राइटिंग मेरी बहुत ख़राब है तो जो जिसकी वजह से मेरे घर वाले ने सोचा कि चलो हैंड राइटिंग ख़राब है एक तो मिल रहा है तो उन्होंने
चलो पढ़ाई तो मेरी शुरू हो गई, मैं साइंस साइड से था और बीएससी किया मैंने। फिर मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन की, एमबीबीएस की तैयारी की। मुझे हालांकि मिल भी गया क्या बात प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो मैनेजमेंट कोटा से, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मुझे तो करना कुछ और था और भेजा कहीं और जा रहा था। फिर कहते हैं ना कि जब आप कुछ करना चाहते हो, दिल और दिमाग के बीच में बगावत लाजमी है। जी। तो वो बगावत मेरे अंदर थी हाँ। और कहीं न कहीं मैंने हिम्मत की, हम्म, रिस्क लिया और छोड़ दिया। right, मैंने मेडिकल लाइन छोड़ दी और मैंने थिएटर करना शुरू किया और फिर एक लोकल न्यूज़ चैनल था जहाँ पे मैंने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट करी। 75 रुपीज़ पर बुलेटिन मिलते थे ओह, उसमें। ओके, तो मेरे लिए तो वो इंस्पिरेशन थी, एक मोटिवेशन था कि कुछ तो मिल रहा है। राइट, और जब लोकल चैनल में लोग देखने लगे तो और मोटिवेशन मिला कि अरे दुकानों पे जा रहा हूँ सामान लेने, अरे ये तो आता है न्यूज़ में। तो हाँ, ये अच्छा लगा मुझे। फिर मैं रात को छुप-छुप के, मैं प्रयागराज से हूँ, तो हम्म, प्रयागराज में एक स्टूडियो हुआ करता है, अभी भी है, बहुत पुराना है, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे काम करता है। अभी भी वो लोग अपग्रेड खुद को नहीं किया है। मेरे ख़्याल से ये उनके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी वो एक जर्नी रही है, तो अच्छा लगता है, अभी भी जाते हैं तो। वो उनके यहाँ मैं रिकॉर्डिंग में वॉइस ओवर करने जाता था हम्म, और वॉइस ओवर, ये कमर्शियल वॉइस ओवर नहीं हुआ करते थे। वो बीएमसी की पाइपलाइन या इस तरह के कुछ एड्स आते थे, हाँ, 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 टंकी जो बन रही है पानी की सफाई के लिए, नगर निगम जो चलवाता है, राइट, उसके अनाउंसमेंट्स होते थे। और रामलीला में जो लाइट एंड साउंड से रामलीला खेला जाता था, रामलीला में जो वॉइसेस होती थी राक्षसों की, हाँ, अब वो फिलर्स जो थे, अब मेन वॉइस ओवर जो होता था वो तो राम और सीता का अलग होता, राइट, कैरेक्टर वॉइसेस के लिए रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो हम हम्म, जाते थे वहाँ पे, सीख रहे थे उस टाइम पे। तो कहीं मारीच की वॉइस के लिए मिल रहा है, कहीं सुबाहु की वॉइस के लिए मिल रहा है, छोटे-छोटे। मैं खुश होता था करके, और जब रामलीला होता था तो मैं जाके सुनता भी था कि मेरी आवाज़ आने वाली है। हाँ, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, किसी राइट, को क्या पता कौन बोल रहा है। हाँ, उस हज़ारों की भीड़ का हिस्सा मैं हुआ करता था कि जिसकी वॉइस वहाँ पे चल रही होती थी, और मुझे खुशी होती थी कि एक राइट, मोटिवेशन और मिला। राइट, फिर मैंने रेडियो में ऑडिशन दिया, ऑल इंडिया रेडियो में। हम्म, पहले साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट, क्योंकि जो कमियां थी वो मुझे पता थी। मैं एक गांव से आया हुआ लड़का था जो कि डिक्शन और उच्चारण और उर्दू के तलफ़ुज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। हम्म, और जो गांव में बोला जाता है, शादी को भी शादी बोला जाता है वहाँ पे यूपी में, जी, तो मैं भी वैसे ही था। आवाज़ अच्छी थी, मुझे लगता था कि मैं, आवाज़ अच्छी है तो मैं कर जाऊँगा हाँ, और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जी, लेकिन जो कमी थी वो मुझे नहीं पता थी कि ये कमी है। ये तो हाँ, मैं जानता था कि हमारे यहाँ यही चलता ही है, यही भाषा ही है। तो वो राइट, लैंग्वेज की जानकारी नहीं थी। फिर मुझे गाइड किया वहाँ पे एक जो वहाँ के जो सीनियर वॉइस ओवर आर्टिस्ट थे, हम्म, उन्होंने गाइड किया, सिखाया, 1 साल मेरे ऊपर काम किया और मैंने भी उन्हें पूरा टाइम दिया 1 साल तक। वाह, यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पेशेंस नहीं है। जी, 3 महीने, 2 महीने में कोर्स करने के बाद बोलते हैं कि जॉब नहीं मिली, हमने वेस्ट हाँ, कर दिया टाइम, राइट, पैसा वेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट इतना चला गया। अब वो जी, छोटे से अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाँ, हाँ, इन्वेस्टमेंट वो नहीं है, इन्वेस्टमेंट वो है जो 10 साल, 5 साल काम करके आने के बाद कुछ न कुछ कर रहे हैं। जी, 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 वो जी, इन्वेस्टमेंट है। हम्म, आपका पैसा गया, वो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, वो तो आप अपने खाने, घूमने, मूवी देखने में खर्च कर देते हैं, तब जी, उसको आप काउंट नहीं करते हैं। जी, 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 लेकिन जब आप करियर के लिए वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न में चाहते हैं जी, 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 तुरंत। तो वो पेशेंस अब नहीं है। हमने जो राइट, टाइम दिया है, उसका रिज़ल्ट है कि आज हम ठीक-ठाक काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको रोकूँगा क्योंकि हुँ, मैं बहुत उत्सुक हूँ ये चीज़ जानने के लिए कि जब आप जैसे अलग-अलग रामलीला के हुँ, वॉइसेस में आप हुँ, जाते थे हुँ, और हुँ, उसके वॉइस ओवर कर रहे हुँ, थे। हुँ, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो आप आपके मतलब वो विचार क्या रहते थे? हुँ, दैट्स नंबर 1 हुँ, एंड नंबर 2 कि जो आपसे ये वॉइस ओवर्स करवाते थे, हुँ, उनका बिहेवियर कैसा रहता था? ओके, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि हुँ। वहाँ पे थोड़े रूड बिहेवियर्स होते हैं बिल्कुल एंड करेक्ट आपको तो वो सब सहन करके आगे बढ़ना पड़ता है, बिल्कुल, राइट? सो हाँ। आई वांट टू नो मोर अबाउट इट। तो उस टाइम पे क्या था कि अब सबको एक मंझा हुआ आर्टिस्ट चाहिए होता है, हाँ, एक प्रोफ़ेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट चाहिए होता है। जब एक इंटर्न या एक फ्रेशर जाके वॉइस ओवर करता है और उसको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो जी, इरिटेट होते हैं लोग। हाँ, कभी-कभी डाँट भी देते हैं, भगा भी देते हैं। हुँ, मेरे साथ
उस टाइम पे तो वो चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि जो संजय सिंह थे जिनके साथ मैं काम करता था, वो बहुत ही सपोर्टिव नेचर के थे। वो ओके। कह देते थे कभी नहीं कर पा रहे हो और थोड़ा-सा प्रैक्टिस करो, फिर आएगा। मेरे समझ में आ जाता कि ये सीधा-सीधा मना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि अभी नहीं करना है तुम्हें। हाँ। तो मैं समझ जाता था, फिर वो चीज़ें सीखता था, फिर आता था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। जी। उनके साथ प्रैक्टिस करता रहा, सीखता रहा, फिर धीरे-धीरे करके करने लगा काम। वंडरफुल, दैट्स रियली अ नाइस स्टोरी सर। एंड मुझे लगता है कि ये सपोर्टिव नेचर वाला जो आपने हेरिडेटरी जो आपको मिला है वो अपने हुँ, गुरु की तरफ से ही मिला है, कि बिल्कुल। आप भी काफ़ी सपोर्टिव होते हो जब हमें हुँ, सिखाते हो तभी। मैं वही जो मैंने फेस किया है, मैं वो नहीं चाहता कि अब लोगों को करना पड़े। राइट। क्योंकि कभी-कभी लोगों को लगता है कि जो आते हैं ट्रेनिंग लेने, हुँ, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उनको उनका एक वो टर्म्स एंड कंडीशंस रख देते हैं हुँ। कि क्या जॉब मिलेगी? जॉब मिलेगी तब मैं करूँगा। जी, तो ये इस बात को लेके मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि आप जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तो मैं गारंटी कैसे ले लूँ? जी। ये तो कोई आईटीआई तो आप कर नहीं रहे हो कि आप फिटर हुँ। का काम कर रहे हो। हाँ, आपने सीख लिया, आप जाके प्लम्बर बन गए या ओह! आप मैकेनिक बन गए। हुँ, ये तो रेडियो है, ये वॉइसिंग इंडस्ट्री है, स्किल का काम है यहाँ पे। जी, अपने स्किल पे जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। जी। और बाकी आगे बढ़ा तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले हुँ, जो डिमोटिवेट करने वाले थे, हुँ। जो लाइव इवेंट्स जब हम करते थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पे ऐसे लोग मिले कि जो आपसे माइक छीन लेते थे। ओह! स्टेज पे आपसे माइक छीन लेते थे कि कुछ उनको अनाउंस करना है और हम फ्लो में हैं, राइट। आके बीच में स्टेज पे घुस के माइक छीन लेते थे हाँ, और खुद बोलने लगते थे। उनको लगता था वो बेहतर बोल रहे हैं। ओके। तो ऐसे सिचुएशन में भी हमने उस चीज़ को हैंडल किया है, टैकल किया है। राइट। ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स भी मिलते थे, हाँ, जो कि काम करवाने के बाद पैसा ना देना पड़े, कम देना पड़े, उसके लिए आपको सुनाने लगते थे कि हाँ। ये बहुत बकवास शो गया है। अच्छा। ताकि ये आप उनसे डिमांड ना कर पाओ कि इतना पैसा दो, जो हमारी आपकी करेक्ट। बात हुई थी। तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स मिले हैं और हुँ, कभी-कभी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती थी स्टेज पे। हुँ। ये कभी-कभी ऑर्गेनाइज़र्स की वजह से भी होता था कि ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो जाती थी, जी, स्क्रिप्ट चेंज हो जाती थी, जी। गेस्ट चेंज हो जाते थे। तो हाँ, वहाँ पे आपको किस तरह से हैंडल करना है, वो एक एंकर को, एक पब्लिक स्पीकर को बखूबी आना चाहिए कि राइट, आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करते हैं, हैंडल राइट। करते हैं। और कभी-कभी आप अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई, हुँ, फंबल किया, जी, उसके बाद आप ऑडियंस तरफ देखने लगते हैं कि हाँ, भाई अब ये हूटिंग करेंगे, राइट। अब ये आप खुद डर जाते हैं। तो हाँ, इसलिए जब भी हम जाते हैं स्टेज पे तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, जी। ताकि हमारे पास वो तैयारी रहे कि अगर कुछ मिस हुआ है, हुँ, तो हमारे पास इतने सारी चीज़ें, इतने फिलर्स हैं कि उसको हम हैंडल कर सकें, पब्लिक जी, को एंगेज कर सकें जी। और आगे बढ़ सकें। सर इसमें मेरा एक सवाल मतलब एक एक किस्सा ज़रूर मैं सुनना हुँ, चाहूँगा, हुँ। ओके? जहाँ पे आपने बोला कि माइक छीन के खुद बोलने लगते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू एज़ वेल? येस, ओके। हुआ है मेरे साथ। सो कैन यू एक्सप्लेन दैट स्टोरी एज़ वेल इफ यू कैन नरेट दैट स्टोरी, और आपने तभी हाँ। कैसे हैंडल किया वो चीज़ को? न्यू ईयर का टाइम था, न्यू ईयर होस्ट करना था 31st दिल्ली में हाँ, हाँ, हाँ। और क्राउड अच्छी थी बहुत अच्छा शो जा रहा था। और कभी-कभी होता है कि जब आपके गेस्ट चेंज होते हैं तो अचानक अगर उनका नाम आपने नहीं लिया, हाँ, जो स्पॉन्सर्स हैं अच्छा। या जो जिनको लाके सामने चेयर पे बिठाया है, जो आपके गेस्ट हैं, उनके नज़र में वो बहुत बड़े गेस्ट हैं क्योंकि उन्होंने पैसा दिए हैं, करेक्ट। वो सेलिब्रिटी हैं उनके लिए। जी, शायद अगर हम गलती से उनका नाम भूल जाते हैं, तो फिर वो बात हमारे ऊपर आ जाती है, हमारी पेमेंट काटने लगते हैं। तो ओके, उस टाइम पे यही हुआ था कि मैं किसी स्पॉन्सर का नाम भूल गया बोलना। ओके। और चलते शो में ऑर्गेनाइज़र आया, हाथ से माइक छीना और एक ऐसा लुक दिया कि लगता है कि मुझे धक्का दे देगा। तो मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है भई? अचानक इसको हाँ, क्या हो गया? आके 4-5 नाम गिनाए, उसके बाद मैंने माइक लिया, फिर बहुत काम होके मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया। किसी ने मुझसे कहा था कि उस टाइम पे चुप हो जाना चाहिए जब तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा हो। हुँ, तो मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन मैंने हुँ, अपने आप को कंट्रोल किया, चुप हो गया।
शो को आराम से निकाला किसी तरह। बाद में मैंने बोला कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी में दोबारा मैं शो नहीं करूँगा। तो उसी दिन से उसका नंबर ब्लॉक किया। मैंने कहा दोबारा इसके साथ काम नहीं करना है। बट सर वैसे ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि मेरा जो सवाल है यहाँ पे कि नॉर्मली हम ऑडियंस एक फ्लो चलता रहता है तभी हम ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं। ओके एक फ्लो एक चलता रहता है कि जहाँ पे ऑडियंस हमें देख रही है कंटिन्यूअसली और वहाँ पे एक अच्छा फ्लो बन गया है और मैं ऑडियंस के साथ बातें कर रहा हूँ। इट इज़ लिटरली दैट वे। पर जब भी ऐसा सिचुएशन आती है तो आपका जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन रहता है वो तो टूट जाता है। बिल्कुल। तो फिर आपने वो कनेक्शन कैसे बिल्ड किया, अगर आप उसके ऊपर थोड़ा बात करें तो? देखिए, एक आर्टिस्ट, एक एंकर या पब्लिक स्पीकर जब स्टेज पे होता है तो गलतियाँ, फंबल होना लाज़मी है, क्योंकि ये इंसान है, कोई एआई नहीं है। जी। तो हम गलतियाँ करते हैं, फंबल करते हैं, लाइव शोज़ में भी फंबल होते हैं, रेडियो पे जब हम जाते हैं तब भी कई बार फंबल हुए हैं। जिसको, जब आर्टिस्ट है उसको कवर अप करना आना चाहिए जी। चीज़ों को। जी। उसके साथ बदतमीज़ी हुई है, फिर भी वो मुस्कुरा के चीज़ों को हैंडल करा ताकि ऑडियंस पे इम्पैक्ट ना जाए वो, और राइट। ऑडियंस उससे कनेक्टेड रहे। और उस टाइम पे भी वो उसको इग्नोर करता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, ये तो जस्ट मजाक था। तो वो उसको उस तरह से हैंडल करता है राइट। और इग्नोर करता है उस टाइम पे चीज़ों को और कवर अप करके आगे बढ़ता है। नाइस, दैट्स अ ग्रेट एडवाइस सर। ओके बट जैसे आपने अभी जो दूसरी बात बोली थी, सॉरी, तो जब आप ऑल इंडिया रेडियो के लिए दिल्ली आए थे, ओके, और आपने ऑडिशंस दिए थे एंड ऑफ कोर्स तभी मैं समझता हूँ कि आप तभी भी एंकरिंग तो कर ही रहे थे, हाँ, बिल्कुल। राइट? सो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको एक एम्बेरेसिंग मोमेंट फेस करना पड़ा बिकॉज आप लाइन भूल गए थे या फिर थोड़ा ब्लैंक हो गए थे एंड नाउ यू आर लाइक ऑल फायर्ड अप, अभी आप अंदर एक टेंशन में हो कि यार अभी मैं क्या करूँ, और फिर वो सिचुएशन से आप बाहर कैसे निकले? कभी कभी स्टेज पे ऐसी गलतियाँ होती है और माइक पे भी, लाइव जब आप शो कर रहे होते हो तब भी ऐसा होता है। और रेडियो में तो ऐसा कई बार हुआ है। ओके। और क्योंकि रेडियो में एक आपको मॉनिटर करने वाला एक ड्यूटी ऑफिसर होता है, जो अच्छा। कि आपको सुनता रहता है कि आप जो जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं, जो एड्स एंड स्पॉट्स दिए गए हैं वो टाइमली आप प्ले कर रहे हो, एक सेकंड इधर उधर नहीं हो रहा है। और जो स्टेज पे होता है, स्टेज पे भी गलतियाँ कई बार हुई हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के मोमेंट आए हैं। मैं कई जगह, जैसे कि अभी 2 साल पहले मैं कटनी गया था, जबलपुर के पास है। जी जी। वहाँ पे भी ऐसे हुआ कि मैं शो कर रहा हूँ और कोई आया, अचानक मेरे हाथ से माइक छीन के खुद बोलने लगा और मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। राइट। मैंने उनके हाथ से माइक छीना और बोला, जब आपको ही शो करना है तो आप कर लो या फिर मुझे ही करने दो। राइट। तो उनको फिर शर्म आई, वो नीचे उतर गई। हाँ। तो इस तरह से चीज़ें हुई हैं, बहुत सारे वाक़ये हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे हमने बस यही किया कि सिचुएशन को हैंडल किया राइट। और आगे बढ़े। रेडियो में भी ऐसे हुआ है कि कई बार जैसे कि एड्स प्ले करना भूल गए, हाँ। कि स्पॉन्सर ने ऐड अपना उस टाइम पे चलाने के लिए दिया है राइट। और हम फ्लो में गानों के मूड में हैं और गाना ख़त्म हुआ, उसके बाद बोलना शुरू कर दिया, बीच में ऐड प्ले करना था, राइट। वो चला गया। बाद में ड्यूटी ऑफिसर ने बुलाया, अच्छे से समझाया, 2 महीने के लिए बैन कर दिया। ओह। तो राइट। ये चीज़ें भी होती हैं। राइट। आप रेडियो में ब्लंडर नहीं कर सकते, इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आपको बैन किया जा सकता है। जी। या फिर किसी का नाम आपने गलत अनाउंस कर दिया, हम्म। उसके लिए आपको बैन किया जा सकता है। या इसीलिए रेडियो पे हमेशा क्रॉस चेक होती है स्क्रिप्ट। जी जो जी भी आप जी। बोलने जा रहे हैं, पहले आप क्रॉस चेक कराते हैं अपने ड्यूटी ऑफिसर से, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से, उसके बाद हम आगे ऑन एयर जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन बहुत बार हुई हैं राइट। और होती रहती है, सबके साथ होती है। इसलिए प्राइवेट एफएम में लाइव जाने से पहले 5 मिनट का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ताकि ओके। जो गलतियाँ हुई हैं उस टाइम पे एडिट की जा सके। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे वो होता था। ऑल इंडिया रेडियो में वो ऑप्शन नहीं है। अच्छा। ऑल इंडिया ओके। रेडियो में आप लाइव हैं तो लाइव हैं, 1 सेकंड का इधर-उधर नहीं है। ओके। वाह। वहाँ पे आप फंबल करेंगे, आप अगर कुछ गलती करते हैं, उसके लिए सीधा एक ही इलाज है, बैन कर दिया जाएगा। अच्छा। आप सुधार के आइए, चीज़ों को सीख के आइए वाह। फिर से।
that's really amazing, sir. ये और एक सीखने के लिए इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कि कोर्स। मुझे बड़ी दिलचस्प बात लगती है हुँ, आरजे के बारे में, हुँ, कि जहाँ पे हम लोग बातें करते हैं ना कि अरे 2 मिनट रुक जा, आता हूँ, 5 हुँ, मिनट रुक जा, 10 मिनट रुक हुँ, जा। हुँ, रेडियो में वो चीज़ सेकंड्स में होती है। सेकंड्स में होती है। ओके, एंड दैट इज समथिंग विच इज रियली वो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि उससे वो उससे मुझे कई बार एक वाक़या याद आता है जी, कि अक्सर जब गाना प्ले होने के बाद हमारे पास 2 मिनट बचते हैं ना, हाँ, हाँ। तभी हमें टॉयलेट जाने का मन करता है। स्टूडियो में जब होता अब उस टाइम पे अब डर लगता है कि अगर वहाँ से गए अगर ना लौट पाए तो राइट, राइट, ज़्यादा राइट, टाइम राइट, लग गया तो। ऑफ अब कोर्स। उस वजह से आदमी ये जो बिहाइंड द सीन स्टोरीज़ हैं, जी, ये लोगों को नहीं पता है कि आर्टिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या-क्या होती हैं। जी, 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 जी। एक बार ऐसे मैं न्यूज़ एंकरिंग लोकल चैनल की बात बता रहा हूँ हाँ, हाँ। कि मैं चेयर पे बैठा, कैमरा लगा, उसके बाद जैसे ही स्टार्ट हुआ शूट, सीट नीचे चली गई, चेयर नीचे चली गई। अरे वो फ्रेम से गायब एंकर। तो ऐसे-ऐसे होती हैं चीज़ें जो कि लोगों जी, को नहीं पता होती हैं। जी, जी, और जी। रेडियो में तो अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जब लगता है कि 5 मिनट का गाना है हुँ, और मुझे इसके पहले बोलना है, बोल के गाना प्ले कर दिया, सॉन्ग प्ले करने के बाद हम सोचे कि बस पास में ही वॉशरूम है, दौड़ के जाएँगे, आ जाएँगे, तब तक ये डर रहता है कि नहीं पहुँच पाएँगे तो ब्लंडर हो जाएगा। ब्लेंडर हो इस जाएगा। वजह से 1 घंटा, 2 घंटा लगातार बैठना पड़ता है। ओह, वाह! तो ये सारी चीज़ें होती हैं अक्सर। Wonderful. Audience, you are getting some really great insights on this podcast. Okay, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं ये हर पॉडकास्ट पे बोलता हूँ कि हुँ, जब आप ये पॉडकास्ट को सुने, हुँ, कोशिश कीजिए कि एक बुक और पेन के साथ बैठिए एंड लिसन टू दिस पॉडकास्ट क्वाइट इंटेंशनली, एंड दैट इंटेंशन शुड बी टू लर्न समथिंग न्यू, राइट? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक बुक और पेन के साथ बैठे होंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू यू सर। ओके, हुँ, आपने बहुत सारे दिलचस्प कहानियाँ तो बताई है। ओके, हुँ, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू नो मोर राइट नाउ। हुँ, ओके, तो आप एक आधा समझो, जब आप ये सब चीज़ों से गुजर रहे थे, ओके, हुँ। ये रेडियो अड्डा का प्लान आपके माइंड में कहाँ से आया? ओके, हुँ, ये मुझे ज़रूर जानना है। बहुत बढ़िया सवाल है क्योंकि ये पता होना चाहिए लोगों को और एक कहानी शायद किसी को नहीं पता है, मैं उस पे एक सीरीज़ का प्लान कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। मेरी लाइफ़ जर्नी से रिलेटेड है वो कि 2011 में मैं कोमा में था। फॉर 15 डेज़ मैं ज़िंदगी से लड़ा और मेरे ओके, लाइफ़ के 15 डेज़ गायब हैं पन्नों से। ओके, तो वो ब्लैंक 15 दिन एक सीरीज़ में हम लेके आने वाले हैं हुँ, हुँ, हुँ। और जिसका नाम है रिकेट्सिया। ओके, रिकेट्सिया एक डिज़ीज़ है जो फैटल डिज़ीज़ है जिसमें मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है ओके, और उसमें आपको वेंटिलेटर पे रखा जाता है और आप बचने के चांसेस तो नहीं होते। मैं दूसरा पेशेंट था इंडिया में जिसको बचाया जा सका है और मैं रिसर्च का उनके लिए सब्जेक्ट था। ओह! सेल्फ़ीज़ ली गई बाद में मेरे ठीक होने के बाद। क्या बात है। मैक्स दिल्ली हुँ, नाम हुँ। ले रहा हूँ लेकिन इसका पैसा लेना मैक्स से। तो ऑफ़ कोर्स। उसके बाद जब मैं दिल्ली से मुंबई आया 2015 में मुझे एक फ़िल्म मिल गई थी एज़ अ लीड मैंने उसमें काम किया था। हुँ, हुँ, वो 45 डेज़ शूट बिहार में चला था रक्सौल और मोतिहारी में। हुँ, वो एक रियल लाइफ़ स्टोरी थी मेरे कोमा में आने के बाद मैं ठीक हुआ कि हुँ, अब मुझे फिर से कुछ करना है। जी, वो चीज़ें मैंने जब रेडियो का सब छूट गया था, हुँ, तो मैं जब मुंबई शिफ्ट हुआ तो मैंने वो तो फ़िल्म करी, जैसा कि हर आदमी सोचता है कि मैं मुंबई जाऊँगा तो हीरो बन जाऊँगा, ग्लैमरस हाँ, लाइफ़ है। राइट, जाते ही मुझे मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम कोई है नहीं, मुझे ही ले हाँ, लेंगे। हाँ, तो आया तो मैंने देखा कि एक काम मिलने के बाद मैंने वो काम बिहार में किया था, शूट किया था, यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है। हुँ, मूवी रिलीज़ भी नहीं हुई थी कि पहचान मिले उससे। राइट, उसके बाद ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर फोर बंगलों के चक्कर लगाना, फिर सर्वाइवल के लिए क्या, मैं घर से पैसा नहीं ले सकता था क्योंकि मैंने बगावत करी थी। जी, पैसा हालाँकि आता था, हुँ, लेकिन खुद से नहीं माँग सकता था। जी, तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए कि मैं सर्वाइव कर सकूँ। हुँ, एक सीरियल मिला मुझे उस टाइम पे ना हौसला हारेंगे दूरदर्शन के लिए। ओके, मैंने उसमें काम किया, कुछ पैसे उससे आए। उसके बाद 2 रियलिटी शोज़ मिल गए मनोरंजन टीवी के, मैंने होस्ट किया उसको डांस रियलिटी हुँ, शो। हुँ, हुँ, कुछ पैसे उससे आ गए, लेकिन वो ज़्यादा नहीं था। जी,
और मेरे अंदर वो एटीट्यूड था कि मैं कैमियो वन डे टू डे वाला शूट नहीं करूँगा, ओके। कि जो एक दिन दिखाया चले गए, फिर हाँ, कई महीने बाद। हाँ। तो मैं वो सो और मैं सोचा कि चलो जो आता है मुझे पहले उसमें ट्राई करूँ। रेडियो जी। मुझे आता था, वॉइस और डबिंग के लिए ट्राई करना शुरू किया। हुँ, थोड़ा-थोड़ा काम करने लगा। हुँ, एंकरिंग के लिए ट्राई करने लगा हुँ। कि आरजे की प्रोफ़ाइल पहले सही थी, तो काम एंकरिंग में मिलने लगा। जी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 अकेडमीज़ थी हुँ, मुंबई में, जो कि रेडियो ट्रेनिंग और फ़िल्म ट्रेनिंग देते थे। हुँ, हुँ, हुँ। उनके यहाँ मैं वॉइस मॉड्यूलेशन की क्लासेस लेना शुरू किया, एंकरिंग की और रेडियो की। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जी। नवी मुंबई मुझे जाना पड़ता था। हुँ, हुँ, हुँ। फिर एक फोरमंगलो में है, वहाँ पे 2 वीक में 2 दिन उनके यहाँ क्लासेस लेता था। जी। फिर मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा फ़ीस ले रहे हैं स्टूडेंट से, हाँ। और मुझे दे रहे हैं नॉमिनल, जो मेरा एक फैकल्टी की जो फ़ीस जी। होती है। हुँ, मैंने कहा कि जब काम मुझे ही करना है, हुँ। पढ़ाना मुझे ही है, फ़ीस सारी वो रख रहे हैं, तो मैं अपना क्यों ना स्टार्ट करूँ? राइट, तो मुझे एक मोटिवेशन मिला वहाँ से, ये समझ आया कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। बिल्कुल। फिर मैंने एक छोटी-सी जगह ली, हुँ, गोरेगाँव वेस्ट में, और उस टाइम पे रेडियो अकेडमीज़ बहुत कम थी। जी। तो मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट डालना शुरू कर दिया रेडियो ट्रेनिंग की, और पहले बैच में ही 15 स्टूडेंट्स आ गए। क्या बात है! तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात थी कि ये यहाँ पे चलने वाला है, क्योंकि और अकेडमीज़ थी नहीं, और जो थी बहुत ज़्यादा पैसा ले रही थी। ऑफ़ कोर्स। तो मैंने एक नॉमिनल कॉस्ट में शुरू किया। तो फिर 1 साल चलाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा-सा और आगे बढ़ा जाए, तो फिर मैंने हार्मनी मॉल, गोरेगाँव वेस्ट में मॉल में एक जगह ली। हुँ, मॉल में स्टार्ट किया, हुँ। फिर और मोटिवेशन मिला, प्रमोशन हुआ और स्टूडेंट्स आने लगे। जी। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे पास रेडियो स्टेशन तो है नहीं, अब हाँ। ट्रेनिंग तो दे रहा हूँ, लेकिन इनको प्लेसमेंट या फिर इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी? जी। तो मैंने फिर रेडियो अड्डा 2019 में मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि इनको ट्रेनिंग के साथ इंटर्नशिप भी दी जाए, ताकि ये ट्रेनिंग लेके हमारे ही प्लेटफॉर्म पे काम करें, प्रैक्टिकली उनको नॉलेज मिले और सीखें। तो फिर 2019 में ऑफिशियली रेडियो अड्डा लॉन्च किया, जिसमें कि सारे सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट किया, और हुँ। अच्छा खासा वहाँ पे गैदरिंग हुई, लोग आए। फिर 2019 से वो सिलसिला चलने लगा, और आज तक वैसा ही चल क्या रहा है। बात है सर! बहुत बढ़िया सर एंड थैंक यू। इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। बट यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है आपसे। हुँ। 2019 में आपने स्टार्ट किया और 2020 में लॉकडाउन आ गया था। हुँ। ओके, व्हाट वाज़ द सिचुएशन बैक देन? लॉकडाउन कुछ चीज़ों के लिए बहुत बेहतर रहा है। ओके। अ, जहाँ पे सारे लोग जा चुके थे, मुंबई से बहुत सारे लोग भाग रहे थे, अपने-अपने शहरों में हुँ, जा रहे थे। हुँ। जो एक्टिंग कर रहा था, जो कि सिर्फ़ एक काम के भरोसे था, हाँ, वो भाग रहा था। जिसके पास जी। बहुत सारी चीज़ें थे, यही आज स्किल मेरे लिए काम आई। कि मैंने एक स्किल डेवलप कर ली थी, टीचिंग वाली। हाँ। अब वो मैं उस टाइम पे मेरी शादी लगभग होने वाली थी। हुँ, हुँ, तो मेरी वाइफ़ से ऐसे फ़ोन पे बातें चलती, लॉकडाउन के टाइम पे सब चले जा गए, और मैं भी भाग आया था घर। हुँ। लास्ट फ्लाइट थी जो जिससे मैं भाग के गया था, ओके। वरना पहुँच ही नहीं पाता। तो रेंट जा रहा था हर जगह का, ऑफ़िस का रेंट जाना, घर का हाँ, रेंट जाना, और हाँ। लैंडलॉर्ड कम करने को तैयार नहीं थे। राइट। उस सिचुएशन में मैं क्या करता, ऑफ़लाइन ट्रेनिंग तो हो नहीं पा रही थी। तो मेरी वाइफ़ ने वो मुझे सजेशन दिया कि ऑनलाइन स्टार्ट करो। हुँ, हुँ। तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें आई, ऑनलाइन स्टार्ट किया, और उसके बाद अच्छा एडमिशन आ गया ऑनलाइन में। मैंने राइट। कहा कि ये तो काम कर गया भई, ये हुँ। एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन अच्छा रहा है। जी। तो वो जब अच्छा चल गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ, हमने दिल्ली ब्रांच लॉन्च कर दी। क्या बात है! तो जब स्टूडेंट मिल चुके थे, अब उनको ऑनलाइन पढ़ने के बाद उनको प्रैक्टिकली सीखना था। हुँ, तो ये समझ में आया कि अब ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफ़लाइन पे काम करना पड़ेगा, तो दिल्ली बिल्कुल। ब्रांच हमने लॉन्च की। दिल्ली के बाद फिर हमने धीरे-धीरे करके पटना लॉन्च किया, फिर हुँ, आगे बढ़े, पुणे लॉन्च किया, राइट। फिर लखनऊ, प्रयागराज, रांची, क्या बात है! कानपुर अभी स्टार्ट हो रहा बहुत है, बढ़िया सर, कोलकाता। आपकी जर्नी मतलब हमेशा और एंड आई एम हुँ, लविंग दैट आप पूरे के पूरे किस्से बता रहे हो एंड दैट इज़ हुँ, समथिंग व्हिच आई रियली एडमायर। हुँ,
एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हुँ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के वक़्त बहुत सारी चीज़ें नहीं स्टार्ट की है, एंड हुँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पॉडकास्ट है, हुँ। वो भी लॉकडाउन की ही देन है। अरे वाह! क्या ओके, बात है। सो सुपर्ब! वी स्टा आई स्टार्टेड पॉडकास्ट एट माय प्लेस, और तभी हुँ, मैंने स्टार्ट किया था ₹20 के ईयरफ़ोन से, हाँ। जो लोकल ट्रेन में मुंबई में हुँ, मिलता है। ओह! Okay, and यार from there the podcast has gotten up and हुँ, it is going well right now. सुपर्ब! I mean, आप आ चुके हो हाँ, तो अरे definitely देख रहे हैं कितना अच्छा सेटअप है सारा लॉकडाउन के दिन है। राइट, बट ऑडियंस एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा इधर, हुँ, दैट चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी, बट जब भी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो, ज़रा दिलीप सर की कहानी को याद कर लेना, एंड आई एम श्योर बहुत सारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं उधर से मिल जाएगा आपको। सो दैट्स फ्रॉम माय साइड। दिलीप जी, बैक टू यू। सर जी, एक बात और मैं हुँ, जानना चाहूँगा आपसे। हुँ, ओके, ये आपने रेडियो अड्डा की जो जर्नी है वो तो आपने हुँ, शुरू कर दी, हुँ, आपका खुद का रेडियो चैनल भी है जी, अभी, हुँ, एंड काफ़ी सारे लोग भी आते हैं, हुँ, इंटर्नशिप भी अभी हुँ, हो चुकी है जी, चालू। तो मुझे ये पूछना है कि अभी जब आप मेंटोरशिप करते हो, जब हुँ, लोगों को आप सिखाते हो, हुँ, क्योंकि मैं भी एक प्रोफेसर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि जब अपना बच्चा कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है हुँ, तो एक हल्की सी किक ज़रूर बैठती है कि हुँ, हाँ यार, देखो मेरा स्टूडेंट है। हाँ, तो कोई ऐसा किस्सा जो आप हुँ। बताना चाहो और आपके किसी स्टूडेंट ने आपको गौरव महसूस करवाया हो? बहुत अच्छा सवाल है आदि और मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन लोगों के किस्से शेयर करूँ जो कि रेडियो अड्डा से आए और आगे बढ़े हैं और आज एक फ़ेमस चेहरा हैं। पहला नाम तो मैं ओमी जोशी का लूँगा। ओमी जोशी को आप सद्गुरु को आप पहचानते होंगे, जी। साउथ के जो जी, जी, जी। सद्गुरु जी हैं। सद्गुरु की जो हिंदी ऑफ़िशियल वॉइस है, वो ओमी जोशी करते हैं। ओह! ओमी जोशी रेडियो अड्डा से पास आउट हैं और ओमी जोशी ने अपने करियर की शुरुआत वॉइस ओवर डबिंग में रेडियो अड्डा से करी है। वो हैं, उनको देख के लगता है कि मिलियंस फॉलोअर्स, मिलियंस व्यूज़ जा रहे हैं, लोग सुन रहे हुँ, हैं सद्गुरु को। जी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे ही बीच का एक स्टूडेंट है जो था अभी बहुत ही अच्छा डबिंग आर्टिस्ट है पंकज जी, रत्ना, जो कि साउथ की फ़िल्म्स में मेन वॉइस ओवर, मेन डबिंग आर्टिस्ट है, जो कि कई हीरोज़ की वॉइस वहाँ पे करता है वो। राइट। और मुझे जब मैं पहचान जाता हूँ कि ये तो पंकज की हाँ, हाँ, आवाज़ है हाँ। क्योंकि मैंने ट्रेन किया है। जी, जी, जी। और एक काशिनी गुप्ता है जो कि कोलकाता से लॉकडाउन के टाइम पे उसने ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी और यही होता है ना जिसके अंदर जोश और जज़्बा है सीखने का और कुछ कर गुज़रने की चाहत है, वो कुछ न कुछ कर लेगा। बिल्कुल, जो लोग शिकायतें लेके पैदा हुए हैं, वो शिकायत ज़िंदगी भर करते हैं और अपने आप पे काम नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो उसने अपन लॉकडाउन में बिना मशीनों के, बिना इक्विपमेंट्स के उसने सीखा। हुँ, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था वो, इंजीनियरिंग हुँ, का बंदा था वो, राइट। लेकिन साउंड एडिटिंग उसको आती थी, साउंड इंजीनियर था वो। हुँ, हुँ, हुँ। वॉइस पे भी काम किया और आज अपना स्टूडियो उसने सेटअप किया है कोलकाता में, उसके अंडर में 20 लोग काम करते हैं वहाँ पे। क्या बात है! डबिंग का पूरा हिंदी टू बंगाली हुँ, पूरा हुँ, काम उसके पास है। हिंदी टू इंग्लिश पूरा काम है, बंगाली टू इंग्लिश, बंगाली टू हिंदी पूरा काम उसके पास है। वो कोलकाता में बैठ के ही लाखों रुपए कमा रहा है और दूसरों को भी जॉब दे रहा है। तो बिल्कुल। ऐसे लोग भी रेडियो अड्डा से जुड़े हुए हैं। हुँ, कुछ हुँ, टीवी एंकर्स हैं, हुँ, हुँ, हुँ। कुछ लाइव स्टेज एंकर्स हैं जो कि जी। होस्ट करते हैं, कॉर्पोरेट हुँ, शोज़ होस्ट करते हैं। उसमें से कई लोग हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, दीपा कटारिया हैं, गुजराती हैं, जी, गुजराती की जितना पॉडकास्ट है, वॉइस ओवर है, वो गुजराती में वो करती हैं। बिल्कुल। उसके अलावा एक और स्टूडेंट है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ऑफ़ लेकिन कोर्स। एंकर बहुत अच्छा है और वो आजकल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, लाइव बिल्कुल। एंकरिंग कर रहा है। तो बहुत सारे नाम हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाम ऐसे याद करूँगा तो बहुत सारे आएँगे लेकिन लंबा हो जाएगा वो लंबी फ़हरिस्त, राइट। क्योंकि अभी रेडियो सिटी और रेड एफ़एम में यहाँ पे 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है मुंबई में ही। क्या बात है! रेड एफ़एम में हमारी ही स्टूडेंट शताक्षी काम कर रही हैं एज़ एन ओके, प्रोड्यूसर एज़ आरजे, तो यहाँ पे काम कर रही हैं। राइट। और दिल्ली में भी काम कर रहे हैं। हम दबीर हमारा ही हुँ, हुँ। स्टूडेंट है जो कि उन्नाव में वहाँ पे एज़ अ चैनल हेड बन के गया है रेडियो स्टेशन में। क्या बात है! तो बड़े-बड़े मतलब हुँ, मुझसे हुँ। भी अब वो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो मुझे काम देते हैं।
अरे क्या बात कि है। सर मेरे पास एक आया है, ये आपके लिए काम है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, देखो तुम सीख के मुझे काम दे रहे हो। तो राइट, वो खुशी होती है उनको देख बिल्कुल के काम बिल्कुल। कर रहे एक हैं। एक यहाँ पे आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा है। हाँ, अरे हाँ। नहीं नहीं, जस्ट किडिंग। नहीं, 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 बहुत अच्छी बात है कि आज अ, मुझे तो खुशी होती है कि बुलाया मुझे इस पॉडकास्ट पे, और मैं तो हर जगह शेयर करता हूँ कि देखो एक एग्ज़ाम्पल सेट हो जाएगा, जो हमारा जो फ्रेम बनता है, जो सक्सेसफुल टीम का, उसमें एक नाम अरे आदि का भी। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सो थैंक यू। शाउट आउट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ रेडियो अड्डा ऑन दिस पॉडकास्ट। सो जितने भी लोगों का नाम लिया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। अभी आपको सारे एपिसोड सुनना है। थैंक यू सो मच थैंक यू। सर। वी आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग दिस एपिसोड, ओके, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके। सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़, आखिरी चीज़ शायद मैं पूछना चाहूँगा। अगर लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इफ पीपल वांट्स टू कनेक्ट विद यू एंड दे वांट टू फाइंड यू ऑन द इंटरनेट, कहाँ जाए और कैसे करें? रेडियो अड्डा का ऑफिशियल पेज है, इंस्टाग्राम पे भी रेडियो अड्डा ऑफिशियल, और यूट्यूब पे भी है रेडियो अड्डा ऑफिशियल, फिर फेसबुक पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, हर जगह। और वेबसाइट है www.radioadda.in। और आरजे दिलीप सिंह को भी वो ढूंढ सकते हैं, मिल जाऊंगा गूगल पे भी। बिल्कुल और ट्रिंग जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम जैसे लोगों को हायर किया जाता है, बिल्कुल वहाँ पे भी मिल जाएंगे। बिल्कुल। तो सब जगह अवेलेबल है, बस क्या बात कोशिश है। होनी चाहिए, ढूंढने की शिद्दत होनी चाहिए। बिल्कुल। सो ऑडियंस, आपकी शिद्दत है, बट हम आपके लिए इस चीज़ को काफ़ी इजी भी कर देते हैं। हाँ, I'll mention the links in the description. क्या बात। So you are just a click away from RJ Dilip Singh, right? Make sure to get connected with him and make sure to let him know that you have heard him on podcast on personality development. तो आपको पहले रिप्लाई मिलेगा, right sir? करेक्ट। Correct, right? So make sure to do that. With that being said, sir, thank you so much. आपने थैंक यू अपना सो मच वक्त आदि। निकाल के आप ये पॉडकास्ट का हिस्सा बने। ये हमें मेरे बहुत लिए ही बहुत खुशी हुई। खुशी की बात है कि हमेशा मैं सबका इंटरव्यू और पॉडकास्ट करता हूँ। लोग रेडियो अड्डा पे बोल रहे थे कि आपका इंटरव्यू करते हैं। मैंने कहा मेरे चैनल पे ही मुझे क्यों इंटरव्यू करोगे? मुझे कोई और बुलाए तो मुझे मज़ा आएगा। तो आज बुला लिया। बिल्कुल। एंड आप मानिएंगे नहीं सर, आई एम श्योर मैंने बहुत लोगों का पॉडकास्ट डेब्यू किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने आपका भी एक पॉडकास्ट थैंक यू सो डेब्यू किया मच, है। बहुत मज़ा So आया। thank you so थैंक much, यू। sir, and it was really a pleasant time which I spent over here talking with you. And guys, that's it. Thank you so much for listening to this episode. If you feel that this episode and this podcast adds value in your life, make sure to share it with your loved ones as well. This is Aditya Mehta along with RJ Dilip Singh signing off from this episode. See you in the next one. Till then, peace out.